consumer behavior. Now what we discuss is, we just discuss about the value, that is how we can create the value towards our consumer. Now I need to understand the consumer behavior. Now why to understand this consumer behavior? Simply, I am a marketer. What I need is that I can sell more of my product and consumer can buy more of my product. So simply my target is to influence the buying process. और now in order to influence the buying process, अगर मुझे अपने consumers के buying process को influence करना है, मुझे क्या करना होगा? मुझे consumer के buying behavior को समझना होगा कि consumer कब खरीदेगा, क्या खरीदेगा, क्यों खरीदेगा. So simply consumer behavior is what? Consumer behavior is simply a study of how individuals make decisions to spend their available resources like time, money and effort on consumption related items. What they buy, why they buy, when they buy, all this thing. तो consumer behavior में हम क्या study करेंगे कि consumer कैसे अपना decision ले रहा है regarding buying or making a decision to spend, खर्च करने का जो decision है ना, with the available resources. Now we all are aware कि ये जो available resources का factor है ये हमेशा ही constant में रहता है, कभी भी ज़्यादा नहीं होता. So with this available resources which is constant, he need to think of spending. That is available resources, वो क्या सोचेगा? Consumer allocation of resources. First हो गई resources, जो उसके पास time, money, everything is there, and second हो गई allocation of resources. वो क्या कैसे खरीदेगा? मतलब if you wish to buy a TV, अगर you wish to buy a TV, what he can do? There are so many channels he can go through, like online, offline. He can visit to a store, and अगर वो store भी जाता है, चलो physical store में भी visit किया, तो store में भी फिर उसके पास कितने सारे brands हैं, वो सारे उसको देखने हैं. Brands हैं, financing options and so many other factors are there. ठीक है? तो ultimately consumer behavior जब हम study करते हैं, we would like to understand all the efforts a consumer uses while buying a product. ठीक है? और वो किस तरीके से करता है, ये सारे प्रोसेस वो कैसे होता है. मतलब हर कंज्यूमर्स अलग अलग हैं. कोई होता है कि अचानक से गए और कुछ खरीद, ठीक है, सडनली कोई जाकर कुछ खरीद लेता है. कुछ होते हैं बहुत प्लानिंग करके खरीदते हैं एक सामान को, धीरे धीरे उसके लिए पैसे जमा करते हैं एंड देन दे बाय. सो नाउ वी ऑल नो देयर आर हेट्रोजेनिटी ऑफ पीपल. हमारे जो मतलब कंज्यूमर्स हैं, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे एक तो पॉपुलेशन बहुत है एंड दे ऑल आर हेट्रोजेनियस. कोई भी एक जैसा नहीं है, एक कंज्यूमर भी दूसरे से नहीं मिल रहा है. हर कोई का अपना अपना बिहेवियर है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है. सो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स के एक टारगेट को अगर मैं समझना चाहूँ कि भाई ये टारगेट है, ये मेरा टोटल पॉपुलेशन है, इसमें ये टारगेट को मैं मतलब ये सेगमेंट को मैं टारगेट करना चाह रही हूँ, तो ये segment के लिए what should be my strategy? It could be a very challenging task. So it is the first thing what we need to do is understanding the entire pattern of consumer and then we can define our consumer कि इसको हमें ऐसे segment करना है, इसको ऐसे segment करना है. Now marketers की कोशिश क्या रहती है? As a marketer मुझे इतने heterogeneous factor तो हैं, मुझे समझ में आ गए, इतना heterogeneous मेरे consumers हैं. Now as a marketer what will I try to do? I will simply attempt to obtain an in-depth knowledge of the consumer's buying behavior. मैं एक attempt करूँगी कि मुझे थोड़ा in-depth knowledge मिले, in-depth knowledge of my consumers. I'm writing in short, ठीक है, in-depth knowledge मिले about my consumer buying behavior. Now simple सी बात है, अब मैं जितना in-depth consumer knowledge लूँगी, उसके ऊपर depend करेगा मेरे जो product है उसका आइदर सक्सेस और फेलियर, दोनों ही उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आइदर सक्सेस और दी फेलियर. तो इस वजह से हमें बाइंग बिहेवियर को समझने की जरूरत है. ठीक है? इवन बाइंग बिहेवियर जब हम समझते हैं तो नॉट ओनली सक्सेस एंड फेलियर, वी कैन मेक अ प्रॉपर फॉरकास्टिंग. हमें फॉरकास्टिंग में हेल्प होता है, प्रोडक्ट डिसीजन में, प्राइसिंग डिसीजन में, हर एक चीज इन्फ्लुएंस होता है. तो अल्टीमेट मैं यहाँ हूँ, अगर इधर हूँ मैं एक प्रोड्यूसर एंड my consumers are here. Now as a producer, not only as a producer because I need to keep marketers here. Marketers का main काम है to reach towards the consumer. Consumer तक पहुंचना तो marketers का काम है. ठीक है? तो marketers must think from the consumer point of view.
तो कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू को सोचने के लिए आपको कंज्यूमर बनना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा. यू नीड टू गो टू द मार्केट, यू नीड टू मेक अ रिसर्च, जो श्रेया बहुत ज्यादा कर रही है, डेटा कलेक्शन. Shreya, it is definitely going to help you out in future because you are collecting more and more data. This means you are gaining an access towards the consumer directly. Okay. Now factors influencing consumer buying behavior. अब देखो एक consumer का जो buying behavior होता है वो किस किस factors से affected होता है. Consumer buying behavior is affected by various factors. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं द प्रोडक्ट. जैसे कंज्यूमर के लिए भी आप कंज्यूमर बाइंग या कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात अगर करें तो बहुत सारी चीजें हैं. लाइक कौन सा प्रोडक्ट मुझे लेना है, प्रोडक्ट के भी इतने सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं. कौन सा ब्रांड मुझे लेना है, उसकी प्राइसिंग फैक्टर, मेरा प्रेफरेंस क्या हो. कंज्यूमर का प्रेफरेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट थिंग. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स हैं उसमें फर्स्ट फैक्टर जो आता है, बिल्कुल मैं फर्स्ट फैक्टर्स पे आ जाती हूँ. लेट मी राइट दिस पॉइंट. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग. मैं जाती हूँ फर्स्ट पॉइंट में. फर्स्ट पॉइंट इज अवर कल्चरल फैक्टर्स. नाउ कल्चरल इश्यूज हमें पता है, कल्चर के बारे में हमें पता है. बहुत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, द एंटायर कल्चर. क्या है, व्हाट इज अ कल्चर? नॉर्मली इफ आई नीड टू डिफाइन व्हाट इज अ कल्चर, कल्चर सिंपली सेट और जस्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. कल्चर इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. आप अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल को ले लो, उनके जो माने उनका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब यू कैन ऑब्जर्व, सिंपली यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम देम, वो हो जाता है उसका कल्चरल फैक्टर्स. ठीक है, कल्चर इज कंसिडर्ड एज अ सेट ऑफ रूल्स, वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर, कॉन्सेप्ट. तो ये सारे चीज आ जाते हैं आपके कल्चरल फैक्टर्स में. हमारे कल्चर में क्या आता है, किस तरह का खाना खाते हैं हम, किस तरह से पहनते हैं, अवर ड्रेसिंग, अवर थिंकिंग पैटर्न, अवर व्हाट टू से ट्रेडिशन, पूजा एंड ऑल. ये हो जाता है ना हमारे कल्चरल फैक्टर्स में. तो कल्चर में क्या क्या हो जाता है, आपके अपने रूल्स, आपकी जो अपनी वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम फिर जनरली रिफ्लेक्ट करता है अवर बिलीफ सिस्टम. उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं, बिहेवियर एंड कॉन्सेप्ट दैट इज कॉमन. और कॉमन मतलब कुछ कुछ चीजें हैं. ठीक है, एंड बाइंड्स टुगेदर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. तो ये हो गया हमारा कल्चर. हमारा पूरा आप लाइफ में देख लो, हम लोग एक सर्टेन कल्चरल फैक्टर्स को लेकर ही चलते हैं विच इज कांस्टेंट. लाइक कॉन्शियस हो अनकॉन्शियस हो, प्रेशर ऑन अस टू डिस्प्ले सर्टेन टाइप्स ऑफ बिहेवियर. ये हमारे कल्चरल फैक्टर जो है ना वो हमेशा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है. लाइक इन इंडिया डॉटर्स मैरिज जो है ना ये एक कल्चरल इश्यूज है, कल्चरल फैक्टर है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड on daughters marriage simply because of this cultural issues. ये हमारे यहाँ का एक certain मतलब आप बोल सकते हो एक constant pressure है सबके ऊपर, क्योंकि ये हमारे इंडियन कल्चर है. मतलब एक बहुत बड़ा ग्रैंड एक सेरेमनी है. तो दिस इज ऑल्सो कल्चरल मतलब फैक्टर विच डेफिनेटली विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बाइंग प्रोसेस. अब देखो कल्चरल फैक्टर्स में और क्या क्या चीजें आ जाती हैं. परसेप्शन, हमारी सोच. परसेप्शन मीन्स व्हाट वी थिंक, राइट, व्हाट वी परसीव अबाउट एनीथिंग. परसेप्शन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. The same thing might be perceived differently to different people. Like for some situation, I say it is positive, you might say it is negative. So it depends on the perception, on simply your thought process. So perception is one such important factor which actually comes from our culture. That is the society where our upbringing is done, the family where we have learned a lot of things. Definitely all these things influence our mind. These are all our psychology. Means culture directly influence our thinking pattern, right? Now perception, wants, क्या चीजों की जरूरत है, and behavior learned by an individual influence his buying behavior. ठीक है, and whatever you have learned throughout your individual upbringing process, whatever you have learned, it will definitely have an impact on your buying behavior.
आवर कल्चर विल इन्फ्लुएंस थ्रू आउट अवर लाइफ, क्या खाना है, क्या पहनना है, एवरीथिंग, है ना। तो मार्केटर्स को तो इस स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। लाइक मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। फर्स्ट जो इनिशियल जो वी मस्ट हैव हर्ड अबाउट केलॉग्स। इनिशियल जो केलॉग्स आया था इंडिया में, मे बी बहुत साल पहले की बात है, मतलब 15 साल हो गए होंगे, 15 साल भी ज़्यादा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन से ईयर में आया था। बट इनिशियली केलॉग्स मैंने केलॉग्स इन इंडिया फेल। तो केलॉग्स इंडिया में क्यों फेल हुआ था? उस टाइम में जब इंडिया में आया था केलॉग्स, उसका फेलियर होने का कारण क्या था? केलॉग्स डिड नॉट अंडरस्टूड द इंडियन कल्चर। इंडिया का जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं टुवर्ड्स हैविंग ब्रेकफास्ट, उसके बारे में नहीं पता था। हमारे यहाँ का कल्चर क्या, नॉर्मली हमें पराठा, पूड़ी या इस तरह का कुछ खाना है, ठीक है, या मैंने कुछ मैंने नॉर्मली हम लोग में जैसे दही चूड़ा खा लेते हैं, सत्तू बहुत कॉमन है, ठीक है, पराठा, पूड़ी, रोटी, ऑल दिस आर वेरी कॉमन टू एवरी फैमिली इन इंडिया। तो केलॉग्स इंट्रोड्यूस द वेरी लाइट ब्रेकफास्ट, वो कॉर्नफ्लेक्स लेकर आए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरी न्यू टू इंडियन कंज्यूमर्स। इंडियन के लिए ये बिल्कुल नया था। द कॉन्सेप्ट, एंटायर कॉन्सेप्ट वाज वेरी न्यू एंड पीपल डिड नॉट एक्सेप्टेड इट बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, क्या खाना है। फर्स्ट तो केलॉग्स, एक तो केलॉग्स को वो जब यूज कुछ लोगों ने खरीदा, तो केलॉग्स को उन लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ का नियम क्या है, वी प्रेफर हॉट मिल्क, देखें, विद शुगर, मीठा होना चाहिए ये। तो इसके कारण क्या हो गया, इसके संग ये जो कॉम्बिनेशन है और भी ज्यादा वर्स कर देता था केलॉग्स का टेस्ट। तो केलॉग्स फेल्ड, इनिशियली केलॉग्स फेल्ड बिकॉज दैट टाइम first reason was they did not understood the consumer preferences, consumer taste in India, the consumer culture, everything, they ignored this factor. Second thing, the marketing and advertisement, वो इस जगह पर भी फेल हुए, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट से यहाँ पर भी वो फेल हुए। उन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट किया, अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है। बट यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए थी, बिकॉज दिस केलॉग्स इज डेफिनेटली अ गुड प्रोडक्ट, केलॉग्स एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, हेल्दी प्रोडक्ट है, बट सिंस दिस वाज न्यू टू अवर कल्चर, केलॉग्स को क्या करना चाहिए था, जो उसने बाद में किया, पहले इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट देना चाहिए था एंड नॉट परसुएसिव। केलॉग्स मस्ट हैव परस्यूड इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट। अगर वो पहले कंज्यूमर्स को अवेयर करवाता, इंफॉर्मेशन देता अबाउट द प्रोडक्ट, एंड अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड, अवेयरनेस कैंपेन। अब देखो आज की डेट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है खाने पीने का, आप मेट्रो वगैरह में दे दो, मेट्रो कैश एंड कैरी या और कोई भी अदर इसमें चले जाओ मॉल में, तो वहाँ क्या होते हैं, पहले उन लोग वहाँ एक छोटा सा एक ट्रायल ये बनाते हैं और टेस्ट करने के लिए आपको देते हैं छोटा छोटा। तो इससे ये छोटा छोटा टेस्ट सैंपल, नॉर्मली खाने पीने के मामले में तो ज़्यादा होता है। तो जो सैम्पलिंग जो होती है, सैंपल टेस्टिंग ऑफ फूड आइटम्स और एनीथिंग इन दिस मॉल एंड ऑल, ये क्या करे, इट इज रीचिंग टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। तो पीपल आर नाउ गेटिंग द नॉलेज, उससे क्या हो रहा है, उनको नॉलेज मिल रही है उस प्रोडक्ट के बारे में, देन द एक्सेप्टेंस विल बी इजियर, राइट। तो लेटर ऑन केलॉग्स अंडरस्टूड दिस स्ट्रैटेजी कि उन्होंने इंडिया में जो वो आए थे, और वो उस टाइम में वो उनका मायोपिक व्यू था, बिकॉज दे डिड नॉट स्टडीड द इंडियन कल्चर वेल। Then Kellogg's reintroduced the same product, but after proper marketing research and understanding the consumer culture and proper marketing research and research वगैरह करके वो marketing and advertisement किया, and Kellogg's is now definitely successful, ठीक है। मैं नहीं खाती, मेरे बच्चे खाते हैं, but still Kellogg's is definitely a good product। चलो ये हो गया। तो एक फैक्टर तो हो गया आपका कल्चर, मार्केटिंग में जब आप कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को समझते हो, द फर्स्ट पॉइंट इज आवर कल्चर, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है थ्रू आउट आवर लाइफ, ये तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज आवर सब कल्चर। अगर इंडिया इज अ कल्चर, अगर इंडिया को मैं कल्चर लेती हूँ फॉर अवर मार्केट, तो सब कल्चर क्या हो जाएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और एनीवेयर, एनी स्टेट यू कैन टेक। तो सब कल्चर इज पार्ट ऑफ द कल्चर ओनली, कल्चर का ही एक पार्ट है सब कल्चर, ठीक है। सब कल्चर अगर मैं बात करती हूँ, ये टोटल कल्चर है। लाइक मैं बंगाली कल्चर को ही लेती हूँ, वेस्ट बंगाल के कल्चर लेती हूँ, आई एम टेकिंग द वेस्ट बंगाल कल्चर बिकॉज आई एम हियर इन वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में ऑल्सो यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट सब कल्चर, लाइक पीपल लिविंग इन ओल्ड कोलकाता,
पीपल लिविंग इन न्यू कोलकाता लाइक राजरहाट एंड ऑल, मैं कोलकाता का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है. पीपल लिविंग नियर टॉलीगंज, सो दे विल ऑल्सो हैव द डिफरेंट सब कल्चर. उनमें भी आप डिफरेंट सब कल्चर ऑब्जर्व करोगे. एक तो टोटल वेस्ट बंगाल का कल्चर है, बट नाउ दिस पीपल लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटी दे हैव देयर ओन सेट ऑफ कल्चर. आप राजरहाट न्यू टाउन में चले जाओ, उनका जो कल्चर है न्यू बंगाली से या न्यू कोलकाता का कल्चर, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल लिविंग इन ओल्ड कोलकाता. ठीक है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. नाउ बंगाली स्टूडेंट्स, यू कैन प्लीज कमेंट. culture, so subculture will have definitely an influence, like आप सब कल्चर का इन्फ्लुएंस किस तरीके से रहेगा, आपका खाना पहनना रहना, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. नॉर्मली जो न्यू कल्चर्स इमर्ज हो रहा है फ्रॉम दिस सब कल्चर, जो न्यू कल्चर इमर्ज हो रहा है, न्यू कल्चर इमर्जिंग फ्रॉम दी ओल्ड वन, जो पुराना जो कल्चर है वहां से जो इमर्ज हो रहा है न्यू कल्चर, वहां पे मॉडर्नाइजेशन ज्यादा दिखेगी आपको. मॉडर्नाइजेशन और यू कैन टेक इट कन्वीनियंस को ज्यादा प्रेफर करेंगे लोग. ठीक है, इस तरह की लग्जरी आइटम्स हो या मॉडर्नाइजेशन हो, जितना ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड प्रोडक्ट हो, कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो, इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग यहाँ पर. और ओल्ड कल्चर जो रहेगा वहां पर लोग ज्यादा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देते हैं. आइदर वो कंसिस्टेंसी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब वो ट्रेडिशनल हो गया और ये काफी फ्लेक्सिबल हो गया और मॉडर्नाइजेशन अप्रोच हो जाता है. ठीक है, नॉर्मली ऐसा देखा है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट सब कल्चर इज सिंपली पार्ट, और उस एक कल्चर का ही एक पार्ट है सब कल्चर जो इमर्ज करता है. नाउ सब कल्चर विल हैव देयर ओन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ओन सेट ऑफ फीचर्स. ठीक है, सब कल्चर डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. लाइक एक ही कल्चर से ओल्ड कल्चर और न्यू कल्चर निकल के आ रहा है, तो उनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं. तो मार्केटर्स को ये भी समझने की जरूरत है. बंगाली अगर है तो बंगाल में सारे बंगाली एक जैसे, ऐसी बात नहीं होगी. ठीक है, सेम वे में आप कहीं पर भी चले जाओ, फॉर यू कैन टेक एनी स्टेट. सो कल्चर इज अ prominent factor, but subculture is a most important because it is now going to be intensive. आप ये ओवरऑल देख रहे हो बर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने कल्चर देखा. सो लेट्स से टेक इट वेस्ट बंगाल, मैंने ले लिया वेस्ट बंगाल का टोटल कल्चर. ठीक है, बट वेस्ट बंगाल में तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे सब कल्चर यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं ना, इतने सारे ग्रुप हैं ना. अगर मुझे टारगेट करना है इसको, तो मुझे यहाँ के सब कल्चर को समझना होगा, और इसको कर रही हूँ तो यहाँ के सब कल्चर को. ठीक है, तो कल्चर तो है ही डोमिनेटिंग, बट उसके अंदर जो सब कल्चर है वो डिटेल्स इंटेंसिव वहां पे स्टडीज करनी होगी आपको. ठीक है, नाउ इसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट इज, दिमाग में घुस रहा है आप लोग की या ज्यादा हो रहा है? सोशल क्लास. नाउ व्हाट इज सोशल क्लास? सोशल क्लास सीधी सी बात है, वी स्टे इन अ सोसाइटी एंड नाउ इन दिस सोसाइटी नॉर्मली members of the society are classified into a hierarchical manner. Normally you will find that we have upper class, upper middle class या lower class. इस तरह के हम लोग की सोसाइटी जो वो डिवाइडेड होती है, सब डिवाइडेड. देखो सोसाइटी का कितना डिवीजन हो रहा है, कल्चर में, देन सब कल्चर में, देन सोशल क्लास में, इतनी ज्यादा डिवीजन हो गई है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हायरार्कियल मैनर डिवाइडेड है, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम या ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की, मतलब सोसाइटल पोजीशन, द सोशल क्लास, किस तरीके से वो डेवलप है, एक पैटर्न बना हुआ है. तो उसके हिसाब से ये अपर क्लास, एसेट्स, इनकम, ये सब चीजों को देखकर, देन अपर मिडिल क्लास, उसके बाद हो गया आपका मिडिल क्लास. ठीक है, देन लोअर क्लास. ये हमारे कुछ सेगमेंट डिवाइडेड है. अभी क्या होता है, हर सोशल क्लास अपने अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदती हैं, उनका एक ब्रांड प्रेफरेंसेस होता है, या कैटेगरीज, ये खरीदना है, ये नॉर्मल, इस तरह का. ठीक है, सोशल क्लास का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी बाय, on the quality and quantity of product that a person buys or uses. Social class का impact होगा on the type, quantity and quality. इसके ऊपर ज्यादा होगा, क्या क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो और कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं. सोशल क्लास का इम्पैक्ट इस पे सबसे ज्यादा होता है.
ठीक है, इसी वजह से मार्केटर्स नीड टू टेलर द प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल. लाइक अपर क्लास पीपल विल डेफिनेटली वांट अ लग्जरी आइटम्स और अ ब्रांडेड प्रोडक्ट. उनका प्रेफरेंस ब्रांड होगा, कुछ भी नहीं खरीद लेंगे. ठीक है, मैं क्या देखूंगी, मैं अगर अपने आप को अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इस बीच में रखती हूँ, चलो इसके बीच में भी अगर समझ लो तो मैं इसके बीच में रखती हूँ. ठीक है, तो मैं क्या देखूंगी, एक बिस्किट पे एक बिस्किट फ्री, मैं ब्रांड नहीं देखूंगी. ठीक है, क्योंकि ये टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी. आई विल प्रेफर क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ. बट अपर क्लास वाले क्या देखेंगे, ब्रांड, कौन से ब्रांड का वो बिस्किट खा रहे हैं. ठीक है, so upper class consists of people who are rich and possess considerable wealth. नॉर्मल सी बात है, हम लोग बंगलो वगैरह में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, all this thing. अपर मिडिल क्लास, यहाँ पर अपर मिडिल क्लास में एक ही डिफरेंस हो जाता है, दे कंसिस्ट ऑफ वेल एजुकेटेड पीपल. यहाँ पर नॉर्मली वेल एजुकेटेड पीपल होते हैं और कुछ अच्छे पोजीशंस में होते हैं, मिडिल साइज या who are professionals and successful. ठीक है, तो इसमें मैं अपने आप को अपर मिडिल क्लास में रख रही हूँ. चलो, मिडिल क्लास में दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ व्हाइट कॉलर्स वर्कर्स लाइक मिडिल लेवल एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, salespeople, academicians, small business owners, etc. These people led a conservative lifestyle and spend moderately. Middle class लोगों का एक सबसे important जो characteristic है, जो हम लोग सब में common है, that is first is conservative lifestyle and spend moderately. बहुत सोच समझ के हम खर्च करते हैं. ठीक है, they live in apartment or reasonably smaller houses and seek to buy product which give more value for money. As I said, one biscuit पे one biscuit free. ठीक है, लोअर क्लास, दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ ब्लू कॉलर. अब लोअर क्लास में चले जाओ, यहाँ सिर्फ लोअर क्लास तक दिए हैं जो ब्लू कॉलर्स वर्कर्स हैं, फैक्ट्री लेबरर्स हैं, सेमी स्किल्स के. इसके नीचे भी होते हैं जो परचेस करते हैं, जो बिल्कुल लोअर क्लास से भी नीचे, वो यहाँ पर नहीं देता मार्केटर्स के लिए. ठीक है, उस सेगमेंट को यहाँ पे भूल जाते हैं, लेकिन वो सेगमेंट भी है. ब्लू कॉलर्स वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे, लेबर, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड हैं, who are unrecognized, unorganized sectors. बट ऐसे भी हैं जो लोग बिल्कुल ही लोग, मतलब इस लेवल से भी नीचे बहुत सारे लोग हैं, एंड दे आल्सो बाय प्रोडक्ट्स. ठीक है, वो लेवल को मार्केटर्स कंसिडर नहीं करते हैं, उनको भी कंसिडर करना चाहिए क्योंकि वो लोग भी सामान खरीदते हैं. चलो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल फैक्टर्स. हो गया, हमने कल्चरल फैक्टर्स को अच्छे से देखा. कल्चरल फैक्टर्स के बाद में आ जाती हूँ सोशल फैक्टर्स के ऊपर. नाउ दिस इज वेरी क्लियर दैट अगर मैं कल्चर की बात कर रही हूँ, कल्चर कम्स इन सोशल फैक्टर्स ओनली. सोशल सोसाइटी होगी, उसी का कल्चर हमको देखने मिलता है. बट सोशल में, सोसाइटी में जो होता है हमारा समाज, आवर ओन सोसाइटी. आई लिव इन अ सोसाइटी. नाउ देयर आर मेनी पीपल whom I get connected with. Like my society is you all students. मेरी सोसाइटी, मेरे समाज में क्या है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स या आप लोग मेरे स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ तो यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल फैक्टर्स हैं, इसका एक इन्फ्लुएंस होगा. लाइक श्रेया ने बोला मैम ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए तो ये बहुत अच्छा है, तो चलो मैं, उसका एक इन्फ्लुएंस होगा, चलो वो खरीदी, मैं भी खरीदती हूँ. मालविका बोलेगी तो वैसे हम करेंगे, तो इसका एक इम्पैक्ट होता है ना. सोशल फैक्टर्स में कौन कौन आ जाता है, आपकी फैमिली हुई, फ्रेंड्स हुए, फॉर्मल सोशल ग्रुप्स हुआ, कलीग्स हुए आपके, इस तरह के. ठीक है, एन इंडिविजुअल्स फैमिली ग्रेटली इन्फ्लुएंस द बाइंग पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल. हमारी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेनेवर वी बाय समथिंग और प्लान टू बाय समथिंग. Right. However, this depends on the amount of interaction he has with his other family members. Subsequently, friends are the next important social group that influences the buying behavior of the individual. Family हुआ, friends हुए. ठीक है, friendship group is an informal and unstructured group. Now कभी-कभी social club and all, जब अपर क्लास में चले जाओ तो क्लब वगैरह बहुत कॉमन फैक्टर्स है जहाँ पे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं. तो फॉर्मल सोशल ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, वहाँ पर भी. The average amount of time an individual spend at his workplace, सबसे ज्यादा जो होगा ना, वर्क प्लेस का इन्फ्लुएंस होता है. वर्क मतलब जो कलीग्स हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, उनके लिए कलीग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रेफरेंस फैक्टर्स हैं. ठीक है ना, सोशल फैक्टर्स में हम लोग आ जाते हैं, जो पॉइंट है हमारा रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है, हर लोग जो होते हैं ना वो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं. कोई इंडिविजुअल उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, या कोई सोसाइटी का कुछ है जो हमको इन्फ्लुएंस करता है. तो जो हमें इन्फ्लुएंस करता है या
हम जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं, either I am being influenced by someone or somebody is trying to influence me and I purchase during that influential process or reference में बोल सकती हूँ, उसको हम बोलते हैं reference group. Buying behavior of consumer is largely influenced by the reference group to which they belong or aspire to belong. ये जो reference group है, like इसने इसको refer किया, he will go and buy, make a purchase. So now it depends on this consumer on which reference group he belong to. Suppose this is a reference group, he belong to this group or he aspire to belong to this group. ये इस group का member होना चाहता है, इसीलिए ये purchase कर रहा है. Two things, I belong to a certain reference group, मैं एक group को belong करती हूँ, I'm happy with that, I would like to purchase whatever you purchase. ठीक है, ये हो गया एक चीज. और एक मैं इस ग्रुप में बिलोंग करना चाहती हूँ, मैं इस ग्रुप में एसोसिएट होना चाहती हूँ. तो होने के लिए क्या करते हैं हम, उसके जैसा परचेस करते हैं, उसके जैसा रहन सहन, लिविंग स्टाइल एंड ऑल वी अडॉप्ट दैट. ठीक है, मैं हूँ या होना चाहती हूँ, दोनों ही मुझे रेफर करेगा या दोनों ही मुझे इन्फ्लुएंस करेगा. ठीक है, अब इसमें हो जाता है जो रेफरेंस ग्रुप है ना हमारा, इसमें आपके दो तरह के ग्रुप हो जाते हैं. एक हो गया आपका प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप और एक हो गया आपका सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप. ठीक है, प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप मतलब जिससे मैं एकदम प्राइमरीली कनेक्टेड हूँ, विथ होम आई एम प्राइमरीली कनेक्टेड, बिल्कुल क्या बोलते हैं एकदम इजीली कनेक्टेड हूँ, वो हो गया एकदम प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप. जिसमें एक हो गई आपकी मेंबरशिप, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ, वो आप प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप में हो गया. एक हो गया मेंबरशिप वाला. Suppose I am a member of any club, any social group, anything, तो वहाँ का मैं member हूँ. ठीक है, it could be formal, informal, anything. तो वहाँ से मुझे एक reference मिलता है, I will buy product accordingly. Another is aspiration reference group. अभी मैंने बताया जिसका मैं होना चाहती हूँ, I would like to be the member of this group, उसको बोलते हैं aspiration reference group. Next is disclaimant रेफरेंस ग्रुप. डिस्क्लेमेंट रेफरेंस ग्रुप मतलब मैं हूँ इस ग्रुप का, मैं मेंबर हूँ, बट आई डोंट वांटेड टू बी द मेंबर ऑफ दिस. तो इसके लिए नॉर्मली इस ग्रुप के जो भी रेफर करेगा ये प्रोडक्ट, तो मैं उसको अवॉइड करूंगी, आई विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ग्रुप, जिसको मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको अवॉइड करती हूँ. दिस इज द रेफरेंस टू विच इंडिविजुअल डज नॉट होल्ड एनी मेंबरशिप एंड इट डज नॉट वांट टू बी. ठीक है, तो प्राइमरी में जिससे आप एकदम रिलेट कर सकते हो डायरेक्टली, membership in which you are directly a member of that group, a formal group, a social group, a friendship group, anything. Aspiration group, the group you wanted, means you aspire to become a member of that group. Like मुझे suppose मुझे BCCI की एक membership लेनी है. ठीक है, तो this is my aspiration group, चलो उसके एक association लेनी है, aspiration. डिस्क्लेमेंट, मैं एक चीज की ग्रुप की मेंबर हूँ, आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद इट, वो डिस्क्लेमेंट है, तो नॉर्मली उस चीजों को मैं नहीं खरीदूंगी. एंड अवॉइडेंस ग्रुप, इस ग्रुप में की मैं मेंबर भी नहीं हूँ एंड आई डोंट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, वो हो गया अवॉइडेंस. अब सेकेंडरी में हो गया आपका, सेकेंडरी जो आपका ब्रॉडर कल्चर में आ जाता है, लाइक योर रिलीजियन फैक्टर, कौन से रिलीजन से हो आप. ठीक है, आप कौन से प्रोफेशनल एसोसिएशन से हो, ट्रेड यूनियन से हो, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर सेकेंडरी लेवल. देखो प्राइमरी लेवल में जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, लाइक ये प्राइमरी, इसका इंटरेक्शन हो रहा है इस लेवल पे, आप देखो इसके संग मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा प्राइमरी हो गया. बट अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर से और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेफरेंस, सेकेंडरी रेफरेंस. ठीक है, तो आज यहाँ तक रहने दो. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद दी पर्सनल